Your go ahead, start a video. Assalamualaikum everybody. We are taking class myself Hamza Nizam Qadi and Kashif Sarwar. Faculty at IOBM would be taking a synchronous class on regarding the makeup of our respective courses. We've got two topics that we will be covering. That is, number one is ERP risks and failures in Pakistan, and number two, global warming, its risk and how technology can help in mitigating and managing those risks. Kashif sir, thank you very much for joining us for this session. हमारा पहला टॉपिक है ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो हम लोग बहुत दफा देखते हैं और सुनते हैं कि ERP सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हम आप कौन से ERP पे काम कर रहे हैं. तो काशिफ साहब, क्या क्या ERP होते हैं और किस तरह इसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, क्या होते हैं ERP? Yeah, thank you so much, Hamza. So let me start from the beginning. What is the meaning of the ERP? ERP is stand for Enterprise Resource Planning, right? So इसका purpose क्या होता है? Is integrate the entire organization into a centralized structure. So you guys have seen heard the name of the SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Odoo, Jetty or Thoughtworks, another best of breed solution in-house, ERP. So all these are the ERP types by ERP actually. So the main purpose of ERP is facilitate the organization to the one database for the entire company, including supply chain, marketing, finance, HR, admin. So they have one source of information. So they facilitate. It can be called the nervous system of the organization. Yeah, it's the nervous system. Right. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में या छोटा हो या बड़ा हो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम चल रहा होता है, चाहे वो इवन एक्सेल भी है, उसके ऊपर भी एडवांस एक्सेल की कोर्सेज और एडवांस एक्सेल के जो फॉर्मूलेज लगते हैं तो वो एक ERP सिस्टम कहला दिया जाता है. जब भी एक छोटा SME हो या एक स्टार्टअप हो तो उससे, बट अब चूंकि इट्स अ फॉर्मल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और सारी चीज़ें, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जैसे काशिफ साहब ने बोला, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑरेकल, SAP जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना है, उसका प्रैक्टिस कोर्सेज भी बहुत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं कि ERP इम्प्लीमेंटेशन कितना लंबा प्रोसेस होता है काशिफ साहब, ERP को इम्प्लीमेंट करना? ERP is varies from organization to organization, depending on the complexity of the businesses as well. So it can be varies from the 3 months till the 2 to 3 years, and sometimes unlimited for the some companies as well. I know some of few companies who are implementing the ERP, and I'm not taking the name actually. So again, they pass already 5 years in order to implement their ERP. But as per the best practices, the project should be finished within 6 months. तो इश्यूज आते हैं. Okay, so issues to automatically we main discussion and emphasize toward the supply chain side. So I just want to discussion to keep concise and centralized better. So I want to discuss over 2 cycle actually that is very mandatory for the operation excellence as well as the SAP implementation. Problem क्या आता है कि आपने SAP लेके आ गए, ठीक है, SAP या Oracle ERP जो भी ERP लेके सो जो भी ERP लेके आ गए, ठीक है, तो ERP में काम किस तरह करता है, बना किस तरह है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंड. सो ERP जो बना है वो मेनली आपके किसी XYZ इंडस्ट्री के 5 स्टार पे नहीं बना हुआ, ठीक है. ये बिल्ड हुआ और बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, राइट. कैपेबिलिटी का फर्क हो सकता है बट बेसिक फैसिलिटी वो सेम है. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम SAP इंप्लीमेंट करते हैं, Oracle करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स करते हैं, कोई भी ERP इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उस सिस्टम के में ऑप्ट करने के बजाय बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने सिस्टम को ट्रांसफर कर लेते हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, जिस तरह आप काम करते हैं वो आप ERP में तो मूव हो जाते हैं, तो काम ऐसे ही चलता है. बाद में जैसे कहते हैं एज से टू बी जाना है, बट हम एज से एज पर ही रहते हैं और वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म करके हम अपना ही सिस्टम उसी के अंदर इंप्लीमेंट गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला काम कर रहे हैं. राइटली पॉइंटेड आउट. तो हम एज से टू बी नहीं आते, हम एम्फसाइज करते हैं कि उसी सिस्टम को जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा चेंज इज ऑलवेज बी चैलेंजिंग. जब स्टेटस को चेंज के ऊपर जाते हैं, दैट्स व्हाई ERP इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस का. एवरीबॉडी शुड नो कि ऑर्गेनाइजेशन में ERP सिस्टम आ रहा है, थिंग्स विल बी चेंज एंड इट विल हेल्प अस द एम्प्लॉइज एंड द कंपनी एज वेल. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस ड्राइव को स्टार्ट किए बगैर वी स्टार्टेड फॉर द ERP इम्प्लीमेंटेशन, और जहाँ पे एम्प्लॉइज बैठे
स्टेकहोल्डर बैठे हुए होते हैं, दे आर टेकिंग द ERP, ठीक है यार पहले मैं इस तरह काम करता था, अब इस तरह काम करूँगा काम। इस मैट्रिक से केस स्टार्ट होता है तो एंड रिजल्ट भी वैसे ही है। तो बेसिकली what we can understand is कि culture is very important before implementing ERP. We need to change the culture there ताकि वो mindset change हो, और then once the ERP system is getting implemented basically, तो वहाँ से जो एक change लेकर आए तो वो फिर सारा database, हमारी reports, variance analysis और सारी चीजें जो है वो उसी से derive। तो इसके अंदर एक सवाल मेरा आया कि supply chain जो है वो supply chain की कौन-कौन सी basic मॉड्यूल्स जो है वो इसमें फर्स्टली SAP की अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या इंप्लीमेंट होते हैं? SAP का जो सप्लाई चेन का मॉड्यूल है दैट्स कॉल्ड द मटेरियल मैनेजमेंट, राइट? सो मटेरियल मैनेजमेंट बेस करता है इस साइकिल पे दैट्स कॉल्ड द प्रोक्योर टू पे साइकिल, P2P साइकिल, ठीक है। अच्छा मजे की बात है कि आप SAP में भी ले लेंगे सेम साइकिल है, और इकल में चली जाती है सेम साइकिल है, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट में भी साइकिल है, ऑर्डर में भी साइकिल है। And just for the students as well, P2P cycle is always asked and it's a very hot topic for interview as well कि जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो you should know what is a P2P cycle। जो MBA के स्टूडेंट्स हैं they always know because they are in the industry, they have an understanding, but जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं they should know कि P2P cycle procure to pay from start to end, जितना पेमेंट जब तक नहीं हो जाती वेंडर की, उसके अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? Yeah, perfect. And the second critical module, second critical module for the supply professional is the S&D module, right? So S&D module it's about the sales and distribution module, ठीक है? इस पर साइकिल by the that's called the order to cash cycle, right? So order to cash cycle में क्या होता है, प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कस्टमर का PO आता है, ठीक है? कस्टमर का PO आ गया तो आपका पहला स्ट्रक्चर सिस्टम है सेलर बुक करेंगे, ठीक है? सेलर बुक करने के बाद देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। मटेरियल अवेलेबल है सो आप क्या करेंगे, अपने वेयरहाउस में इंटीग्रेट करेंगे थ्रू द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग द आउटपुट डिलीवरी, राइट? सो आउटपुट डिलीवरी के ऊपर वेयरहाउस में इंटीग्रेशन जाएगी, देन वेयरहाउस की टीम अकॉर्डिंगली पिक और पैक करेगी, पिक मतलब कि जहाँ पे मटेरियल पड़ा होगा वहाँ से पिक करेंगे, फिर पैक करेंगे और फाइनल स्टेज करेंगे डिस्पैच, ठीक है? उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या होता है, डिस्पैच हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली इनवॉइस जो का अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट है, ठीक है? आपके इनवॉइस को भी जो भी लीक कर रहा होगा फाइनेंस से, और फाइनली पेमेंट रिसीव हो रही होगी, ठीक है? तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर टू कैश साइकिल। इसका सेकंड पार्ट, अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द P2P साइकिल, ठीक है? तो ERP के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये कि सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगी रिक्विजिशन, दैट्स कम अंडर द फॉर्म ऑफ द परचेज रिक्विजिशन, जो सिस्टम रिलेटेड होगा, ठीक है? फिर वो कन्वर्ट अगर मटेरियल अवेलेबल है आपके पास तो आप उसको PO में कन्वर्ट करेंगे, मटेरियल से बना दी कि आपके पास वेंडर अवेलेबल है, प्राइस फिक्स है, ठीक है? तो डायरेक्टली PO प्लेस करके वेंडर को प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास वेंडर मौजूद नहीं है तो व्हाट विल यू डू, यू विल गो फॉर द रेजिंग द RFQ और उसके वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर सब्सिक्वेंटली विल फॉलो द सेम स्टेप। PO प्लेस करने के बाद आपके पास मटेरियल वेयरहाउस में आएगा, GR हो गया, GR फिर इन्वेंटरी के अंदर आ जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली सेम साइकिल सेल ऑर्डर की टीम, कस्टमर सर्विसेज की टीम, ऑर्डर मैनेजमेंट की टीम वो भी ऑर्डर डिलीवरी क्रिएट करेगी, वेयरहाउस को इंटीग्रेट करेगी और सेम साइकिल सब्सिक्वेंटली चलेगी। सो आइडियली देयर इज इंटीग्रेशन और लिंकेज बिटवीन द ऑर्डर टू कैश साइकिल एंड P2P साइकिल। हाउ इम्पोर्टेंट सॉरी डिस्कशन भी है, हाउ इम्पोर्टेंट के बंदे को या एक स्टूडेंट को या जो बंदा इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको ये सारी चीजें बैकग्राउंड भी पता हो। इसलिए बात हमने देखा है कि व्हाट अ पर्सन इज ऑर्डरिंग ही डज नॉट नो बिकॉज उसको बैकग्राउंड नहीं है कि एक टेक्नोलॉजिकल आइटम है या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड राउटर है फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको किस तरह हैंडल टेक्निकल नॉलेज इज मैंडेटरी एक्चुअली, ठीक है? और एक सप्लाई चेन का एक सवाल होता है, आपके सवाल के साथ साथ बहुत सवाल को एसोसिएट करूंगा। सपोज कभी टेक्निकल बाइक होती है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग तो ऑल अलग सप्लाई चेन का काम नहीं है, ठीक है? तो उस रोल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है एक्चुअली। आप जानते हैं स्पेसिफिकेशन सप्लाई चेन इज एक्सपर्ट फॉर द कमर्शियल पर्सपेक्टिव एंड टेक्निकल टीम एक्सपर्ट फॉर द स्पेसिफिकेशन एंड देन गिव द क्लैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सप्लाई चेन टीम स्पेशलिस्ट है in order to create the taking secure the RFQ
in first have to secure the specification and then secure and then circulate the RFQ respective vendor and then commercial vendor के साथ आप negotiate करें as a part of the technical team. So the concept use होता है supply chain management को category में लेना. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप बाय कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की आपकी इंजीनियर्स की टीम होगी, आप होंगे, फाइनेंस के लोग होंगे, तो इट विल बी द वन कैटेगरी टीम उसको प्रोक्योरमेंट सप्लाई की टीम लीड करेगा, द कैटेगरी मैनेजर, कैटेगरी टीम लीडर. सिमिलरली आप आईटी की इक्विपमेंट्स में लेंगे तो आपके पास आईटी टेक्निकल एक्सपर्ट आएगा, आपके पास सप्लाई चेन का कैटेगरी मैनेजर होगा उसका, और सबसे पहले आप फाइनेंस का जो भी आपके डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है आप उसके अंदर. ठीक है, तो वो एक पूरी टीम काम करेगी. अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन होता है द बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबल दैट सप्लाई चेन है, राइट. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें सारी प्रोसेस चलेगी. तो सप्लाई चेन इज अ बैकबोन फॉर एनी कंपनी रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग. यहाँ पे सप्लाई चेन नहीं होती दैट आई ऑब्जर्व, और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हुई हैं कि टेक्निकल पर्सन गए, उन्होंने कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन की डीलिंग कर ली, पाकिस्तान में कैश अलाउ नहीं है for a certain commercial reporter या certain साइकिल के ऊपर. अब वो डन करके आ गया और सप्लाई चेन की टीम के पास आ गया, उसको एग्जीक्यूट करना है. अली दैट नॉट पॉसिबल. सिमिलरली कोई ट्रांजेक्शन जो कि आप एफओडी के ऊपर या सीएफआर के ऊपर फाइनलाइज कर सकते थे, वो ट्रांजेक्शन आपने एक्सपर्ट्स पे कर ली. ठीक है, तो अगेन इट हैज द कॉस्ट. एक्चुअली कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई. अच्छा, कमिंग बैक टू हमारा टॉपिक ईआरपी से रिलेटेड, व्हाट आर द चैलेंजेस हम देखते हैं, बिकॉज आई हैव सीन के पीआर गलत बन गई है या एसएपी के अंदर गलत कोड एंटर हो गया और उसके लिए इतना बड़ा एक साइकिल होता है जिससे हम वापस रिवर्ट करते हैं. तो ये चैलेंजेस पहले आते क्यों हैं और फिर उसको ठीक कैसे, मतलब हम किस तरह, क्या टीम हमारी इतनी एक्टिव होनी चाहिए या पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो कि वी आर रेडी टू चेंज इमीडिएटली. We started our discussion with organizational readiness, change management. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन रेडनेस नहीं है तो फिर कोई भी दुनिया का ERP सिस्टम या कुछ भी आप दे रहे हैं तो एंड में वही होगा, बल्कि अलग से बहुत बुरा होगा. तो फिर बोले आपने कि वो पहला वाला सिस्टम अच्छा था, ये तो बेकार सिस्टम आ गया. ठीक है, तो पहले तो चीज़ की. सेकेंडली प्रोस्पेक्ट से आप जो भी चीज़ करेंगे, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि बेस्ट प्रैक्टिस उसको ऑफ करना है. एज अ रूल ऑफ थंब बोला जाता है कि 80% ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाएगी CPRP पे और 20% ऑफ कस्टमाइजेशन के ऊपर जाएगी. ठीक है, तो अगर आप जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन होगी इतना इसका मतलब चीज़ों को मैच करना है. तो आपकी जो ब्लूप्रिंट बनेंगे, इंस्टेड ऑफ आप अपने प्रोसेस को एसएपी को बताएं, ऑरेकल को बताएं, डायनामिक्स को बताएं. ठीक है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को ऑफ करें. ठीक है, फाइन. एज इज मेरा ये है, लेट्स सी टू बी क्या होगा एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस. उसमें कुछ लोग की जॉब भी लेगी है, कुछ एडिशन भी होगा, कुछ लोगों जॉब रोल भी मैच होगा. ठीक है, तो आपने जो भी आपका पावर यूजर, सुपर यूजर है, बिजनेस प्रोसेस ओनर है, दे नीड टू फाइनलाइज द बिजनेस ब्लूप्रिंट, राइट. फिर सब्सिक्वेंटली मुख्तलिफ मॉड्यूल है, एसएपी का मॉड्यूल है, जिस तरह हमने एसएपी की बात करते हैं, एमएम मॉड्यूल है, मॉड्यूल फाइनेंस का मॉड्यूल है. हर मटेरियल लिंक होता है रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएल, सर्टेन प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर. अगर वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग सही नहीं होगी तो आप जितनी अच्छी एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन कराई होगी और इतनी कराई होगी एमएम के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, वो अल्टीमेटली फेल होगी. फिर जब यूज़र डेटा एंटर कर रहा होगा वो कहीं और एडिट कर रहा होगा. ठीक है, फिर समझ नहीं आएगा यार ये तो आपने सप्लाई चेन का मसला है, तो मतलब उसका ये मसला मैपिंग का है. ठीक है, जब प्रोसेस मैप आउट लेंगे, इक्वालिटी थर्ड स्टेज आता है आपका यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट, UAT जिसे UAT बोलते हैं. ठीक है, UAT के अंदर क्या करते हैं आप, तमाम सिनेरियोस को पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डज मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव से मुराद ये है कि आपके रेगुलर प्रोसेस चलते हैं, पीओ में किस तरह बनता है, पार्शियलिटी हो गई, प्राइस चेंज करना है, एडवांस देना है, सिस्टम क्या बिहेव कर रहा है इन द क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन में कितना कंपनी है. सिमिलरली नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है, कि क्या कोई बंदा कोई बंदा जाके कोई ऐसी चीज़ कर सकता है खुली शर्त जो सिस्टम अलाउ कर दे. गलत टैक्स कोड डाल दिया, गलत एंट्री कर दी, कस्टम को वो है एचएस कोड गलत डाल दिया, कुछ इस तरह रिकॉर्ड. बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल है. एक एग्जांपल होगा तो समझ में आएगी. पीओ की डेट हुआ आज की डेट का, किसी बंदा गया बायर और उसने की डेट पे 1 महीना पुराने कर दिया, सिस्टम अलाउ कर रहा है. ठीक है, जीआर वही नहीं है, सिस्टम अलाउ कर रहा है इनवॉइस पोस्टिंग की. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी डिस्क्रिपेंसी है कि जब तक गोल्ड डिस्प्ले होगा इनवॉइस किस पर पोस्ट हो सकती है.
जब पोस्ट हो गई तो उसका मतलब है वो पे भी हो सकती है बिल्कुल, और सब सामान अभी तक आया नहीं और वो फाइनेंस तक चली गई पेमेंट के लिए, तो 3 वे अगर मैच नहीं होगा, ठीक है, एक ही चीज़ें नहीं हो रही, तो अगेन तो आप नेगेटिव टेस्टिंग करके देखते हैं कि इस सिनेरियो में सिस्टम किस तरह बिहेव करता है, और बिलीव मी बहुत सारी दफा सिस्टम एबनॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, तो आप उसको फिक्स कराते हैं। जब यूएटी टीम हो जाती है, पहले तो आपने अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंट की, फिर आपकी जो डिपार्टमेंट लिंक हो रहा है, जैसे लाइक और P2P सेकंड में पेबल डिपार्टमेंट आपके साथ लिंक होता है, टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स कोड्स के साथ, टैक्स कोड के साथ, रिसीवेबल डिपार्टमेंट है, सब एक साथ, तो आप एक साथ बैठ के पूरे क्रॉस फंक्शन टीम एक साथ बैठ के टेस्टिंग करती है तमाम सिनेरियोज को, उसके बाद वो उसका गो अहेड देती है। तो इट शोज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज एस्टैब्लिश्ड दैट डायरेक्टली। कोई फेलियर होगा तो जब टीम के ऊपर आती है तो डेफिनेटली फिर आपका प्रोस्पेक्टिव गेन होगा, सप्लाई चेन में से मसला हुआ, सेल्स की तरफ से हुआ, पेमेंट की तरफ से हुआ, ट्रेजरी की तरफ से हुआ, वेयरहाउस की तरफ से, तो दे आर ऑल वर्टिकल। तो ये जो आपने अभी पॉजिटिव टेस्टिंग, नेगेटिव टेस्टिंग, हर किस्म का सिनेरियो, तो इसको रिस्क एनालिसिस भी बोल सकते हैं यहाँ पर। यस डेफिनेटली, कि ईआरपी का एक रिस्क एनालिसिस टेस्ट हो रहा है, कि जो है वो उस हिसाब से चीजें चल रही हैं और काम हो रहा है। अच्छा, ईआरपी हमारा एक और है कि फेलियर्स हमने बड़े जोर से जाके जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बोर्ड अप्रूव कर देता है, सीईओ बहुत सारी कंपनी जो है वो अप्रूव करती हैं, मगर फिर ये है कि हमें फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं कि जहाँ 6 महीने 1.5 साल का टाइम, 1 साल का टाइम था कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो अब 1.5 साल हो गया और अभी तक एक प्रोसेस है, चेंज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, टीम चेंज हो गई, पूरा जो कंसल्टेंट है वो चेंज हो गया, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? इज अ वेरी इम्पैक्ट एक्चुअली, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस सिस्टम है एक्चुअली, ठीक है, तो अगर आपको नोटिस सिस्टम ही गाइड जाएगा तो डेफिनेटली आपका सिस्टम कोलैप्स होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा, वन ऑफ माय एक्स बॉस प्रीवियसली ही वाज ऑलवेज एफ्टिंग ERP इज नॉट अबाउट द चेंजेस ऑफ सिस्टम, इट इज अबाउट चेंजिंग द हार्ट एक्चुअली, ह्यूमन बीइंग के बाय का जब होता है आपका हार्ट निकलता है, तो सिमिलर वैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, अगर उसको केयरलेसनेस के साथ हैंडल किया जाएगा तो उसका रिजल्ट फिर लॉन्ग टर्म पे आता है, राइट। सो जो हम साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो कॉज बनता है आपके फेलियर का, चेयरमैन की डायरेक्ट नहीं होती और यूजर जो बस ठीक है ऊपर से डिसीजन आया है हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू हाईलाइट इज अबाउट द सेपरेट टीम फॉर द ERP इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। ये भी वन ऑफ द एलिमेंट होता है कि आप ऑपरेशन से भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ERP की इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, सो आई थिंक वो भी एक चीज़ क्योंकि ऑपरेशन आगे होता है और सिस्टम पीछे की तरफ हो जाता है, तो यू कैन नॉट मेक द पर्सन अकाउंटेबल या पीपल अकाउंटेबल, ठीक है। दिस इज अनदर रीजन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर, जब सिस्टम आता है तो ठीक है पार्शियली काम हुआ पार्शियली नहीं हुआ। यूएटी की टेस्टिंग वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर मैपिंग के ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है। जब उसके बाद फिर जब लोग आते हैं तो सिस्टम में द सेम मैनर, बोर्ड क्या मानता है या आपके शेयर होल्डर क्या मानते हैं, इज अ वैल्यू शेयर होल्डर डेटा एक्चुअली वैल्यू क्रिएशन आपने क्या वैल्यू क्रिएट किया, इन द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू, इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ द एसेट एफिशिएंसी, मेरी विजिबिलिटी कितनी है उसमें, मेरी लाइफ में क्या सुकून है, मेरे कस्टमर के रेवेन्यू कितना बड़ा, सेटिस्फेक्शन में क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी एम्प्लॉइज की, बॉटम लाइन के अंदर मेरे नंबर में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इन तमाम चीज़ों का आप लिंक नहीं कर रहे हैं तो अगेन ERP is a failure actually. So as per the research, around 80% of the organization ERP failure की तरफ जाती है, the massive number actually. It's not in Pakistan, it's a global trend actually. डिले से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। Yes. जहाँ आपने 6 महीने का बजट किया हुआ है, 1 साल का बजट किया है, इसके लाइसेंसेस की फीस, इसके प्रोक्योरमेंट की फीस, और भी पाकिस्तान जो हमें इंटरनेशनल फीसेस देनी होती है कि लाइसेंसेस सारे बाहर के होते हैं, तो इनके पाकिस्तान से डेबिट करने होते हैं पैसे हमें सारी चीज़ें, तो वो आज जहाँ 1 साल का बजट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ था, अब वो चूंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 1.5 साल 2 साल हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली डबल हो गया। प्लस इसके साथ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, SLA जिसे कहते हैं कि भाई आपके पास SLA क्या है, इसलिए जो इंटरनेशनल SLA की है, ऑरेकल की टीम है या माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स की टीम है, वो आपको रिमोट सर्विसेज भी देते हैं, तो वो कब से इंप्लीमेंटेशन होगी स्टार्ट, तो दैट इज आल्सो अ मेजर रिस्क कि आपके कॉस्टिंग फैक्टर जो है वो चेंज बिल्कुल चेंज हो जाता है। और बीइंग इन पाकिस्तान जिस तरह करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, तो उस हिसाब से आपने जो डॉलर लिंक किया हुआ था उसके साथ या पाउंड स्टर्लिंग लिंक किया हुआ था, अब वो अगले साल चेंज हो गया, तो दैट इज आल्सो अ मेजर फैक्टर जो कि हमें वी नीड टू लुक इनटू इट। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, इज अबाउट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो कॉस्ट पड़ते हैं सप्लाई चेन में। यस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है इसकी,
3 months का 6 month का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट होती है x, अगर वो 1 year 2 years हो गया तो अगेन 2x 3x आपकी चीज हो जाती है, तो अगेन इट्स कवर्ड अंडर द सेम। ठीक है काशिफ साहब, आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड रिगार्डिंग ईआरपी। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस अगर आप लोग यहाँ कोई क्वेश्चन है ईआरपी से रिलेटेड? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं और जो ये वीडियो देखेंगे। क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स विल बी अपलोडेड अकॉर्डिंगली ऑन एलएमएस, तो वो आप देख लीजिएगा। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स रिस्क एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन मैनेजिंग दोस रिस्क। ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली द क्लाइमेट चेंज, जो अब पूरी दुनिया के अंदर एक शिफ्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो है आपके अब एग्रीकल्चर रिलेटेड फूड क्रॉप्स जो है, या इवन वाटर के सी लेवल्स जो है वो इतने राइज हो रहे हैं या कहीं डाउन हो रहे हैं कि जहाँ खुशहाली हो रही है, जहाँ ड्राउट्स आ रहे हैं, जहाँ फ्लडिंग हो रही है, ज़्यादा हरिकेन्स आ रहे हैं जहाँ कभी आते नहीं थे। तो अब उसका इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आजकल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई जिसके हम मेजर, जैसे कि एक एग्जांपल है कार्बन फुटप्रिंट की हमें अब मेजर करने होते हैं, नाइट्रोजन फुटप्रिंट है, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें गॉट अ लॉट ऑफ टूल्स। तो इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इधर ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा। काशिफ साहब आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट, अभी लग रहा है नॉर्दर्न एरिया में सर्दियाँ हो रही है, ठीक है, बर्फबारी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, जबकि अभी मार्च, फेब का एंड ऑफ मार्च चल रहा है। यूजुअली ये चीज कुछ 5-6 साल पहले हम दिसंबर जनवरी में देखते थे, मगर अभी हम फेब के एंड में देख रहे हैं कि ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, बर्फबारी हो रही है। अब वहां पर जो एग्रीकल्चर है, वहां जो फूड क्रॉप्स हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हम पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। There's a big impact, massive impact for all the human beings. Unfortunately, जो सिनेरियो देखने में आया, जो कंट्रीज जिनकी एमिशन कम थी वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और जिनकी ज़्यादा थी, ठीक है, उनको शायद बहुत अभी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, राइट। सो इफ यू रिमेंबर 2 years back, जो फ्लड पाकिस्तान में आया था, अराउंड मोर देन 33% ऑफ द क्रॉप्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डैमेज हो गया था, जिसके ऊपर जो एज पर एस्टिमेशन पाकिस्तान को $30 billion का लॉस हुआ था उसके अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। So yes, global warming is creating a lot of impact. Subsequently, आप सोर्सेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के में, सप्लाई चेन की प्रोसेस से बात करें, हमें चाहिए होती है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के ऊपर आपके एक तो हाइडल है, जो हर जगह हाइडल हो भी नहीं रही है, तो मेजर जो पावर जनरेशन होती है वो कोल के थ्रू होती है। कोल इज वन ऑफ द मैसिव सोर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन, ठीक है। तो सडनली जब चाइना ने, जब विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे अगेन 2.5 years बैक, तो विंटर ओलंपिक्स में ये था कि हम एमिशन के ऊपर सर्टेन एमिशन करेंगे, ठीक है, तो हम आपको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, तो देन हम आपको इंडिया अलाउ करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो चाइना ने क्या किया, तो इतने भी केमिकल प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट और जो कोल पे चला सबको बंद कर दिया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया में चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और डिमांड क्या है बहुत हाई हो गई, सप्लाई ना होने के बराबर थी, तो एक इन्फ्लेशन का फैक्टर नजर आया। उस गेम तक तो उधर कुछ चीज़ें चली, जैसे गेम ओवर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वे 60% ऑफ द चाइनीज ब्रांड आर रनिंग ऑन द कोल, ठीक है, जब वो अल्टरनेटिव सोर्स के ऊपर गए, सो जो कॉस्ट थी वो 3 times 4 times हो गई। अब अल्टीमेटली कॉस्ट इनहांस हो गई, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के कस्टमर के ऊपर ही वो सारी चीजें आएंगी। हाउ इम्पोर्टेंट है सोलर एनर्जी? अभी जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम सोलर एनर्जी का कितना फायदा उठा सकते हैं? ये सोलर एनर्जी कंट्रीज डिपेंड करता है, कंट्रीज टू कंट्रीज, यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान है और कुछ और कंट्रीज में इंडिया है, साउथ एशिया है, यहाँ पे तो अवेलेबल है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, बट जहाँ पे फेवरेबल नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे चैलेंजिंग फैक्टर है। सो स्टिल जब साइंटिस्ट आर वर्किंग, कुछ ब्रेक थ्रू मिलेंगे, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए कि जहाँ भी लाइट अगर आ रही है, ठीक है, चाहे सनलाइट हो नहीं है, वो कन्वर्ट कर सके एनर्जी के, तो वी विल सी द बिग ब्रेक थ्रू इन द कपल ऑफ इयर्स। अभी एक और टेक्नोलॉजी आई विंड टर्बाइन की, जिसके अंदर जो है लोग पहले तो सोलर विंड पावर होता था उसके थ्रू, अब एक है विंड टर्बाइन के थ्रू कि वो विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर देता है, उससे जो है वो पूरा टर्बाइन चलता है और एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो सारी एनर्जी एक तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। बट कमिंग बैक, सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो शिपमेंट्स की डिले और वहाँ फ्लड्स और ऐसी
है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। नॉट ओनली हम तो अभी नॉर्दर्न एरिया और इधर की बात कर रहे थे, बट ओवरऑल सी लेवल की इंक्रीज करने से जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन का एक इशू, मेजर इशू आ जाता है, जिसके अंदर जो है कहीं अचानक से हरिकेन आ रहे हैं, फ्लड्स आ गए, या सी लेवल इतना राइज हो गया है कि अब वहाँ, या इतना डम हो गया है कि अब वहाँ शिप नहीं चल सकती, तो वहाँ पर कंटेनर्स के जो इश्यूज आ रहे हैं। और अभी स्विस कनाल का कुछ 2 साल पहले जो है वो एवरग्रीन का इशू हुआ था, वो तो एक चल मैन मेड था या जैसे भी ये हुआ, मैन गलती की वजह से, बट समंदर लेवल डाउन हो गया, अप हो गया, तो वो कितना इम्पैक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड? ये डेफिनेटली इम्पैक्टिंग अ लॉट। तो एक दिन के डेली से बढ़ा दिए कि आपको जहां से चलना है, इमिशन भी आप एक दिन और बढ़ा दिए, कार्बन फुटप्रिंट और पहले तरफ चलेंगे। सिमिलरली आपकी लीड टाइम एनहांस हो गया, जब लीड टाइम एनहांस हो गया तो आपने रखने की इन्वेंटरी कैरी करनी है, उसका इम्पैक्ट आपकी सप्लाई चेन के अंदर भी आएगा। स्विस कैनाल को आगे भी करूँगा, स्विस कैनाल में जो वाटर लेवल है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। तो स्विस कैनाल अब इतने शिप को एक साथ एंटरटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर क्वालिटी टीम इज वर्किंग, रिसर्चर आर वर्किंग ऑन इट, अगर सेम सिचुएशन है तो स्विच कैनाल वर्ड से बंद हो जाएगा, जो एज यू मेंशन कि उनका उसका वाटर लेवल डाउन हो गया, तो दे आर वर्किंग फॉर द अल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट्स का जो अभी आप लोगों ने रेड सी के मामले में देखा होगा, ठीक है। इसके अंदर लीड टाइम क्या हो गया, केप टाउन के पोर्ट की तरफ से आ रहा है, नाउ लीड टाइम उनकी फ्रॉम 12 to 15 डेज है। 12 to 15 डेज का मतलब ये है कि आपने मिशन बना दी, कार्बन फुटप्रिंट आपके नाश हो गया। सेम लॉजिक, लीड टाइम हो गया, आपने इन्वेंटरी ज़्यादा कैरी करनी है। एक पोर्ट की कैपेसिटी 100 जहाज़ की है, उसके पास 1000 जहाज़ आ गए, पोर्ट कंजेशन नाश हो गया, ऑन टाइम अवेलेबिलिटी का पॉइंट हो गया, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगेन पोर्ट कंजेशन हो गया, एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक हो गया, ये वो एरिया है जहाँ पर जो पोल्यूशन सबसे हाईएस्ट होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है आपके एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अभी जीएमओस के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है, बिकॉज अब सॉइल ऐसा बिहेवियर दे रहा है जिसके ऊपर जो है वो फूड स्कैर्सिटी ना हो जाए, और क्रॉप्स चाइना इसके ऊपर टॉप पर चल रहा है कि इस तरह की अब सीड्स बनाई जाए जिसके ऊपर जो है वो फूड क्रॉप्स रेडिली अवेलेबल हो, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक से ड्राउट या इस तरह के इश्यूज आ जाए जिसके ऊपर देयर नो फूड अवेलेबल। तो इसके ऊपर यू हैव एनी थॉट्स के मॉडिफाइड सीड्स जो हो रही हैं और इस तरह? देखिए इसके अंदर भी हमें क्या करनी चीज़ों को कम से कम चीज़ें केमिकल फर्टिलाइजर, अब जो सीड्स पे काम हो रहा है जैसा ऑर्गेनिक रिलेटेड, ऑर्गेनिक का नाम सुना होगा आपने, बट आपकी इसका मतलब आपकी सॉइल और वाटर के साथ मिलके वो सीड में फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड काम करता है, कि पेस्टिसाइड इज अ मैसिव एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टर, ठीक है। सेम गोज फॉर द फर्टिलाइजर, पूरी पाकिस्तान की गैस के अंदर सेंट्री बेनिफिट ही दिया जाता है गैस इंडस्ट्री। तो अगर आपकी सीड ऐसी अवेलेबल हो जबकि मॉइस्चर में अगेन एनपी, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, एनपी के आई थिंक इसको बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो इनकी कॉम्बिनेशन इस तरह की जाए, जनरेट की जाए कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की यूज करना, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी चीज़ हेल्दी, विदाउट केमिकल आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ हमेशा हेल्दी होती है, ठीक है, हेल्दी भी है आपके पास, और क्योंकि जब इसकी कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम करेंगे प्लांट कम चलेगा, तो प्लांट कम चलेगा तो इमिशन कम होगी। तो अब जो एक और कॉन्सेप्ट है अंदर से वर्क आउट हुआ है, कंपनीज को आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन नहीं देखते, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आप ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में फाइनेंशियल, पीपल एंड देन एनवायरनमेंट, ठीक है, तीनों के प्रोस्पेक्ट से बात होती है कि आपने पैसे तो कमाए, आपने अपनी कम्युनिटी में, आपने अपने लोगों में कितना लगाया, आपने अपनी कम्युनिटी में क्या सर्व किया। आजकल आप देखते होंगे मुख्तलिफ कंपनी आके ब्रांडिंग करती हैं, CSR एक्टिविटी, तो पार्ट ऑफ द पीपल थिंग। एंड लास्ट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर, कि ऐसा नहीं कि नहीं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी तो आपने बना ली, ठीक है, बट आपने एनवायरमेंट में डैमेज कर दी। जैसे लाइक टेक्सटाइल के अंदर आपने केमिकल की ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास वाटर ट्रीटमेंट नहीं लगा हुआ, आपने डाइंग की, फिनिशिंग की, आपने उसी केमिकल को डिस्कार्ड कर दिया, वो डिस्कार्ड जो वाटर को समुद्र में जा रहा है, सी में जा रहा है, जिसकी वजह से फिश और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। हमने एक वीडियो देखी थी, वीडियो क्लास के अंदर डिस्कशन किया था जिसके ऊपर कोको की सप्लाई चेन के ऊपर बात की गई थी, जिसके अंदर ऑल्दो दे आर
बट जो वहाँ इन्वायरमेंट लोकल लोग लेबर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो एक हैजार्डस इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ पर, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे और उसके ऊपर जो है वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेबर का भी एक टर्नआउट जो है वो टर्नओवर जो है वो खत्म होता जा रहा है। पीपल आर मोर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पर एक लेबर इंटेंसिव, पाकिस्तान इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो वहाँ पर लेबर चीप है, बट अब टेक्नोलॉजी इस तरह आती जा रही है जिसके अंदर नाउ ट्रांसपेरेंसी आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी वजह से आप ये सारे कार्बन फुटप्रिंट, नाइट्रोजन फुटप्रिंट, एक्स वाई जेड आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल क्या पड़ रहा है? देखिए जैसे कि आप जो हमारे पास ये प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल से COP28 जो भी लास्ट टाइम हुआ के अंदर मीटिंग हुआ था, एक और कॉन्सेप्ट है कार्बन ऑफसेट का, मतलब आपने जितनी इमिशन की फर्स्ट ऑफ मेजर करना है इमिशन कितनी करते हैं, ठीक है, जो आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं उससे आप एनवायरनमेंट को वो इंजेक्ट भी करते हैं। जस्ट लाइक आपने फॉरेस्ट लगाया, ठीक है, अगर फिर एक बार KPT के अंदर मिलियन ट्रीज सुनामी का प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, तो इसी तरह कंपनी इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट इमिशन इतना है XYZ, और इसके बेसिस पे हमने इतना कार्बन ऑफसेट किया है इस कंट्री के अंदर, इस जगह के अंदर, और हमने इसको कार्बन के वर्ष में नाउ वी आर द नेट ऑफ कंपनी। इसके अंदर कार्बन क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं टैक्स के अंदर, और इस तरह के वो टैक्स के अंदर बेनिफिट्स दिए जाएं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर वो बहुत वर्कआउट किया जाता है। लीड सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर वेयर हाउसेस जो है वो इस तरह डिजाइन किया, ऑफिसेज इस तरह डिजाइन किए जाते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो कम से कम इम्पैक्ट किया जाए, और जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप कम से कम करेंगे, तो उसको जब हम ग्लोबली या एक कंबाइन देखेंगे तो उसका एक हमें इम्पैक्ट नजर आएगा। बनस्बत वी वेट फॉर एवरीवन के आप वो स्टार्ट करेगा और सारी चीजें इस तरह। अच्छा, एक चीज और रिगार्डिंग दिस जो गार्बेज और इस तरह जो चीजें हम लोग सी लेवल के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ जो पोल्यूशन हो जाता है या गार्बेज लैंडफिल साइट्स, उसके ऊपर वी हैवंट सीन एनी वर्किंग डन के लैंडफिल साइट्स के ऊपर जो हम लोग गार्बेज फेंकते हैं उसके ऊपर कोई वर्कआउट किया है? हैव यू कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट? या वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे पास सारे रूल रेगुलेशन मौजूद है, एसोसिएशन ही मौजूद है, जब आप पेपर करेंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है ऑन द पेपर। जब एग्जीबिशन के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली एग्जीबिशन ना होने बराबर जो हमें नजर आ रही होती है, जब ऑन द पेपर जाएंगे तो सारी सर्टिफिकेशन भी नजर आ जाए। इफ़ यू रिमेंबर कराची के अंदर एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लग गई थी, उसके अंदर एग्जिट में हेड नहीं था, ठीक है, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी। जब उसका ऑडिट की जब क्वालिटी खुली तो उसके बाद तमाम सर्टिफिकेशन बनी होती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। तो अगेन गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अगेन मैंडेटरी, और एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जो दैट्स व्हाट कम अंडर द फिलोसफी ऑफ एक्शन, so independent so definitely they can report to the government, but their board of directors and their everything was independent, and their accordingly they have to manage all this thing. Road regulation मौजूद है, implementation की जरूरत है unfortunately। ठीक है, अच्छा, you work with some multinationals internationally as well, उधर क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्कआउट किया जाता था कि इम्पैक्ट किस तरह हम जीरो करें या इस तरह कैलकुलेट करें दैट वी आर ट्रांसपेरेंट इनफ कि भाई आपकी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है उसके अंदर हम अचीव आर मैक्सिमम करें? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द कार्बन फुटप्रिंट आपका कितना है। सप्लाई चेन वाले से बात करेंगे तो एक फुटप्रिंट का सोर्स क्या है, जो आपके सप्लायर से आप देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहाँ पे आपके सप्लायर क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, कि एनर्जी वो ट्रेडिशनल यूज़ कर रहा है, सोलर यूज़ कर रहा है या विंड को यूज़ कर रहा है, या लोकली आप क्या अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप क्या किस तरह वर्कआउट कर रहे हो? इस तरह जो एक तो सोलर को हो गया, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसके साथ बिटवीन है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के फ्यूल कंजम्पशन, डीजल पे जो चल रहे हैं सारी चीजें, फिर आपका कोरियर, आपके मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वो होते हैं कोरियर के थ्रू रेस्पॉन्सिबल फ्यूल कर इमिशन का इम्पैक्ट है, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन अगेन जो आपका फैक्ट्री से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड सब्सिक्वेंटली आपके जो प्रोडक्ट यूज होने के बाद डिस्कार्ड होके कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल यूज़ कर रहे हैं या आप नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या जिस तरह आजकल आप देखते होंगे कि प्लास्टिक की बोतल रोड बन गया, इस्लामाबाद में भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट बनाया है, आई थिंक तो विद हेल्प ऑफ कोका कोला जो है उन्होंने ये एक रोड बनाई है विद हेल्प ऑफ प्लास्टिक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू रीयूज आप करें
इस्तेमाल हो रहा है ताकि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया जाए। मतलब हर कंपनी अपने अपने फायदे से जो है वो मतलब अपने अपने एम्बिट के अंदर रहकर जितना फायदा पहुंचा सकते हैं वो सब देख रहे हैं ताकि ओवरऑल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इम्पैक्ट किया जाए और उसको कम से कम किया जाए ताकि ह्यूमन लाइफ शुड बी बेटर ऑन अर्थ। एक चीज और मैं थोड़ी हाईलाइट करूंगा, लेटेस्ट व्हिच आई हैव कम अक्रॉस इज द स्पेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली स्पेस के अंदर जो अभी हमारे तकरीबन एक वॉर चल रही है विद यूएस, रशिया, चाइना, वो अर्थ पे नहीं हो रही, वो जो है स्पेस में हो रही है, जिसमें सैटेलाइट जो है हर रोज एक ना एक कोई ना कोई लॉन्च कर रहा है। तो उसकी डेब्री जो है वो आके गिर रही है, वो अभी एनवायरनमेंट ऊपर अर्थ के ऑर्बिट के पास घूम रही है और सारी चीजें, उसका कितना इम्पैक्ट है। प्लस यहाँ पर अभी वॉर्स चल रही है कुछ कंट्रीज के अंदर, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उधर फ्यूल कंजम्पशन हुई है, उससे पहले 9/11 हुआ, इराक वॉर हुई, ईरान वॉर हुई, उधर जितने जेट फ्यूल यूज हुआ और सारी चीजें, इट ऑल कंबाइंड एंड कम्स टू दिस के नाउ वी आर फेसिंग आवर जनरेशन और हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो अब ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट फील कर रही है और आगे वी नीड टू कम अप विद आवर ओन सॉल्यूशन टू मिनिमाइज दिस। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि खत्म कर सकते हैं, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी सो दैट एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। योर लास्ट थॉट? या अगेन आई एम जस्ट गिविंग द सेम एग्जांपल जो कि ट्रेड के अंदर है। ट्रेड के अंदर 45 बिलियन से ज़्यादा बिल ऑफ लीडिंग ट्रेड होता है ओशन के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 3 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड्स को। इज अ मैसिव थिंग। तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली डेवलप हुआ था मस्ट द कोलैबोरेशन IBM और ट्रेड लाइन्स का एक सॉल्यूशन भी डिवाइस हुआ था ड्यू टू सर्टेन रेजिस्टेंस। इट वाज सक्सेसफुल एक्चुअली, बट ऑल द शिपिंग लाइन and all the global association to the ICC, International Chamber of Commerce, unilateral टिके यूनाइटेड नेशन के भी दाने ट्रेड्स के नाउ एग्री कि 2030 तक हम इसको जीरो के ऊपर ले आएंगे। सो यू कैन सी कि अभी भी हम लोग 1815 या 1800 में इसका डॉक्यूमेंटेशन बिल ऑफ ट्रेडिंग होता था, अभी वैसे ही चल रहा है। मीन्स कि वो ट्रेड होता है, साइन होता है, उसके बाद कोरियर के थ्रू आता है और दैट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 15-20% ऑफ द शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी 2017-18 के अंदर ट्रेड लाइसेंस सॉल्यूशन आए थे, तो लास्ट ईयर मार्च में ड्यू टू द हाई कॉस्ट वो सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि कुछ मंथ्स लाइन ऑलरेडी शिपिंग लाइन ये वो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो अच्छा ठीक है, राइट। सो इट इज अ मैसिव चेंज। तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक स्मॉल से इनिशिएटिव से कितना बिल ऑफ लीडिंग जो है वो नाउ विल बी डिजिटाइज्ड और ब्लॉकचेन के थ्रू एवरीवन कैन व्यू इट ऑन इट और वो अब डिजिटाइज्ड एक तरीके से चलेगा जिससे एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। इसका जो ऑपरेशन चल रही है वो 15-20 से लेके तकरीबन 40 डेज तक का टाइम उठाता है कुछ साइकिल में, और विद इन कपल ऑफ सेकंड तमाम एंटिटीज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। दिस इज द बेस्ट एंड एक्सीलेंट एग्जांपल। और 2030 तक ऑल द शिपिंग लाइन दे विल achieve कर लेंगे, they have committed। Thank you Kashif sir, thank you students for joining us for this session। The quizzes and assignments will be uploaded for the respective classes। risk management की क्लास के लिए जो है it's like and the remaining supply chain courses के लिए it is very important कि you are aware of the latest topics and technological impacts trends जो आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो है वो one should be aware and start reading on it because उसी से you will be stay up to dated on all these things। और डिस्कशन से once you start discussing you get more points, ideas to discuss over it। सेम होता है टेक्नोलॉजी वाइज। से टेक्नोलॉजी इज इनएविटेबल, आपका प्रोफेशन कोई भी हो टेक्नोलॉजी के बगैर आप जी नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी में AI, ब्लॉकचेन, IoT एंड डेफिनेटली तमाम चीज़ें कंबाइन करके आपके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट बनाती है। सो अगेन एज हमजा मेंशन वी नीड टू बी लेटेस्ट अपडेटेड, जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे लेटेस्ट ट्रेंड क्या है तमाम चीज़ों के हवाले से, ERP इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कौन से लेटेस्ट ERP हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम